ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਨੇਹਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੋਟਰਸ ਟਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੈਸਟ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਵਲ ਬਜਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਬਜਾਜ, ਥੈਂਕ ਯੂ so much for coming to our studio. Thank you, and thanks for inviting me for the studio for this one. So Yeah, and it's congratulations on the nominations. How is the campaign going so far? no, the campaign is going very well. It's a great campaign. बहुत अच्छा लगता है when you are meeting people on the door, knowing their issues, उनके issues जानने के बाद में और meeting people, talking to them. It's unfortunate कि we are in a campaign in this mid of this fourth wave. Canadians should not have to go through this election, but Mr. Trudeau to secure his job, he has put everybody's else job at stake and Canadians at stake. But चीज़ ये है कि when on the doors, people are reacting to it. People are unhappy, and लोग बोलते हैं time for Trudeau to go on the doors. So, at the same time knowing the issues of the people, that's great to be. So the campaign is looking very good and very positive. Right. Okay, Brampton East is going to be blue this time. Conservative are going to win, and I'm very positive the same is going to be across पूरे कनाडा में. आप देखोगे blue wave, Brampton में blue wave, Brampton East में blue wave, you will see that. Right, no. Well, we hope the deserving candidate wins. और इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा अपने जो दर्शक हैं उनको जानकारी देना चाहते हैं आपके बारे में, नवल बजाज के बारे में, जो कंजर्वेटिव कैंडिडेट हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप कनाडा में आपकी शुरुआत, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड और उसके बारे में लोगों को बताएं कि नवल बजाज किस विजन से पार्टी में आना चाहते हैं और क्या उनका बैकग्राउंड रहा है सो फार। देखो, मैंने मेरा when I speak about the education, मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ किया है. आज अब कनाडा इतने साल हो गए. इट्स came with a very little money in my pocket in Canada, which most of the immigrants have done so. And आप एक मेहनत करते हो, अपना एक करियर बनाते हो, अपनी फैमिली को रेज करते हो, तो वी हैव बीन फॉर्चुनेट दैट वी आर इन सच ए ब्यूटीफुल कंट्री. यहाँ पर अपना फ्यूचर बनाया है. आपको पता है मैं ब्रैम्पटन ईस्ट में रहता हूँ. आई बीन रेसिडेंट ब्रैम्पटन ईस्ट नाउ more than 10 years. Most of my life in Canada. ब्रैम्पटन ईस्ट में रहते हुए हो गया, और दैट्स द रीज़न वेरी फोकस्ड कि कैसे एक टू सर्व द पीपल. दैट इज़ द जो विजन है वो हरदम टू सर्व द पीपल वाला विजन रहा. टू सर्व द कम्युनिटी एट लार्ज, टू सर्व कैनेडियंस एट लार्ज. When community gives so much to you, when the country gives you so much, you feel you want to give back to the community, give back to people. कैसे लोगों की सेवा की जाए. तो वही हरदम विजन रहा. जब मैं वेदर इट वाज डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इन्वॉल्व रहा, वेदर मैं जब चैम्बर का प्रेसिडेंट रहा, वाज ऑलवेज गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. एंड विद दैट लार्ज विजन stepped into, आपको पता है मैं 2015 में भी I ran from Brampton East as a member of parliament, as a candidate of member of parliament for conservative, and been committed to public life. Have myself committed to it. इसलिए with the same vision, again putting my name on the ballot. Right. Brampton East से conservative party candidate से, और want to serve the people. और ये जब अब डोर पे जाते हो, डोर पे लोगों के इश्यूज सुनते हो, ओवरऑल इश्यूज होते हो, तो यू फील गुड अबाउट इट कि इफ ब्रैम्पटोनियंस, इफ residents of Brampton East, they give a chance to become a strong voice of Canadians, of Bramptonians, especially residents of Brampton East, on different issues, different work on different policies, जिससे ओवरऑल कैनेडियंस की, ब्रैम्पटोनियंस की लाइफ एक अच्छी रहे.
और अच्छी बने, उस पे वही एक one point agenda is to work for people, people. to be the person of people, to work for people. और ये भी है कि want to be in working for people 24/7 365. वो एक हरदम यही रहा है और we will keep on going on the same way. जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा विजन है और होना भी चाहिए, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो इसी के बारे में थोड़ा आगे बात करते हैं। लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मिस्टर बजाज इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेसिडेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। बिजनेस सेक्टर से इनको काफ़ी नॉलेज भी है और काफ़ी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में इन्होंने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन भी दिया है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जो ब्रैम्पटन ईस्ट की राइडिंग है, जहाँ पे 60% पॉपुलेशन साउथ एशियन है, यानी कि बाहर की जितनी भी राइडिंग्स है उसमें मैक्सिमम साउथ एशियन पॉपुलेशन ब्रैम्पटन ईस्ट में ही है, जो कि साउथ एशियन पर्टिकुलरली फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द साउथ एशियन यू कैन से पैरानोया। तो मैं इसके साथ आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इतने साल जब बिजनेस फील्ड में लोगों के साथ काम किया, इंडो कनाडा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी आप प्रेसिडेंट रहे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सामने आई जिन्हें आप आगे लेके जाना चाहते हैं? कुछ मुश्किलें, कुछ दिक्कतें? देखो, एक चीज़ है कि जो ओवरऑल इकोनॉमी की जो बैकबोन मानी जाती है, स्मॉल बिजनेसेस आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो आपको स्मॉल बिजनेसेस का, मेरा हरदम फोकस स्मॉल बिजनेसेस पे ही रहा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पे। स्मॉल बिजनेसेस creates, is, as I said, backbone of the economy, creates a lot of jobs, entrepreneurship. So how can we help the small businesses? ये जब मैं चैम्बर का प्रेसिडेंट था, जब भी यही वो थी, उसके बाद में भी जितना भी काम किया उसमें काफ़ी काम बिजनेसेस को थ्राइव करने पे किया, या हाउ डू वी हेल्प द बिजनेसेस। और चीज़ बहुत बढ़िया है कि व्हेन वी स्पीक अबाउट कंजर्वेटिव पार्टी, it's fiscally responsible, we like to always कैसे businesses grow, कैसे economy grow। और आज के दिन जो सबसे बड़ा जो issue है वो है economy, that economy is in more or less as a crisis, कि we really need to get Canada's economy back on the track। इतनी सारी jobs loss हुई है, need to get Canadians back on the job who have lost the job। और जब कंजर्वेटिव के प्लान की बात करें तो कंजर्वेटिव्स आर वेरी फोकस्ड on getting the economy back on the track to create the jobs। small businesses की बात करें, और ब्रैम्पटन ईस्ट के लिए small businesses are key, because काफ़ी जो लोग हैं ब्रैम्पटन में और ब्रैम्पटन ईस्ट स्पेसिफिक में, वो small business के बैकग्राउंड से हैं। तो अगर कंजर्वेटिव का प्लान देखें टू ग्रांट अप टू 200,000, मेकिंग श्योर दैट टू गेट पीपल बैक ऑन द वर्क, बिकॉज स्मॉल बिजनेस काफ़ी सफ़र किया, सो दे नीड सम फाइनेंशियल सम हेल्प ऑल्सो। और अपनी उनके रेवेन्यू लॉस पे अप टू 25% का जो if needs to be written off, that's the one thing। The other thing is to job creation, Canadians need to get back to work। उसके लिए स्मॉल बिजनेस को भी हेल्प करने के लिए और लोगों को जॉब भी मिले उसके लिए, कि जो थोड़े टाइम से जॉब में नहीं है। सो द गवर्नमेंट विल बी, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट गेट्स इलेक्टेड, विल हेल्प ऑन 25%, अप टू 25% सैलरी, और उसी तरह से for 6 months, and then the similar way who are more than 6 months into the out of job, up to 50% of the on the salary side, so that it's small, it helps the small businesses on the financial side, plus helps the small businesses to get people for work at the same time, people are getting job also। Always conservative का always रहा when it comes to the taxes and all that, to help the businesses by lowering the taxes, creating jobs, not like the liberal government who have imposed some additional taxes on the business, for example, carbon tax, which has made the things very have made put the additional burden on people। overall the life has become unaffordable। देखो, inflation is at the
highest rate in the last Right now, yeah. 20 years. The cost of living has gone up. लोगों, पहली बात तो काफ़ी लोगों के पास जॉब नहीं है, बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं. जिनके पास जॉब भी है या बिजनेसेस भी चल रहे हैं, उसमें इनकम ज़्यादा नहीं हो रही है. जॉब्स have stagnated when it comes to the income. Or at the same time, it's very expensive. Groceries have become expensive. Houses market is out of the roof, yeah, have absolutely. skyrocketed. Overall, जो महंगाई है बहुत काफ़ी हो गई है. People are not able to live a quality life. Canadians and Bramptonians are, they're struggling to meet the two ends. So it's very important that we work on the economy. We work on the jobs. We work on the housing market. We work on the overall tackling the inflation. We work कैसे जो cost of living इतनी expensive हो है उसको how to bring it to the balance, how to balance our books, not giving a 1.4 trillion deficit, not spending के 450 million spending on a daily basis extra, which is putting a burden on not only on our generation but अपने आने वाली generation में, future generation में. We are not paving a correct path for our future. So it's a time to secure Canada's future. और कनाडा का फ्यूचर इज वेरी वेल secured, will be secured under Canada's recovery plan by the Conservative, which is securing jobs, securing the economy, securing the accountability, securing the mental health, securing the country. Right. These are the 5 key points which as Conservatives we are bringing up. And very detailed, अगर आप कंजर्वेटिव का प्लान देखो, इट्स ए वेरी डिटेल प्लान, लाइन बाय लाइन प्लान. हर चीज की आप बात करो, इश्यूज की बात करो, दैट हाउ वी आर गोइंग टू ओवरकम इट, हाउ द प्लान. एब्सोल्युटली. और नहीं, इसी रिकवरी के प्लान के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, पर उससे पहले वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का. विल बी राइट बैक. Welcome back to Parwasi TV and you're watching Voters Talk. I'm your host Reniha Gulati and I have with me Brampton East Conservative candidate Naval Bajaj in studio. And thank you so much guys. आप लोगों के messages और emails हमें पहुंच रहे हैं, आपके सवाल भी हमारे तक पहुंच रहे हैं. प्लीज़ इसी तरीके से अपने सवाल जो हैं आप हमें भेजते रहें. हम आपके सवाल हमारे कैंडिडेट्स के आगे रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि इन इश्यूज़ और कंसर्न्स के बारे में उनकी सलाह क्या है या उनके प्लान्स क्या हैं, ताकि आप सही कैंडिडेट का चुनाव कर सकें. So once again Mr. Bajaj, thank you so much for being with us today. And हम लोग रिकवरी प्लान के बारे में बात कर रहे थे. So थोड़ा सा उसी को आगे बढ़ाते हुए बताइए कि कंजर्वेटिव्स का रिकवरी प्लान क्या है. पर उससे पहले मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट करना चाहती हूँ. जैसे अभी हाल ही में आर्टिकल आ रहा था कि जैसे हम जॉब लॉसेस की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स है वो बहुत बड़ी तादाद में चल रही है, ख़ास तौर पे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में. ना कुक्स हैं, ना सर्वर्स हैं, कुछ भी नहीं है. और उसमें ये है कि पूरे पैंडमिक में फूड इंडस्ट्री एक ऐसी थी जो बंद नहीं रही. यस, डाइन इन बंद था पर फूड टेक आउट में पूरा चला. पर बहुत बिजनेसेस हैं जो स्टार्टअप बिजनेसेस हैं जिनके इंटरनेशनल लेवल से भी कुक्स आने थे, सब स्ट्रैंडेड हैं. तो फूड इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी हिट हुई है, इस तादाद तक हिट हुई है कि लोग डबल भी वेज दे रहे हैं. उसके बारे में थोड़ा आप बताएं कि किस तरीके से कंजर्वेटिव सरकार बैक कैसे लेके आ सकती है रिकवरी, और किस तरीके से वो बिजनेसेस को इन हालातों में सपोर्ट कर सकती है. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. आपको जैसे पता है कि स्मॉल बिजनेसेस इज माय पैशन. मेरा मोस्ट ऑफ द लाइफ है, द करियर हैज़ बीन रिप्रेजेंटिंग द स्मॉल बिजनेसेस. एक चीज़ है कि नॉट ओनली द हॉस्पिटल इंडस्ट्री, पूरी सारी इंडस्ट्रीज में it's affecting a lot. जॉब्स लॉसेस हुए, जॉब क्रिएट करने का कोई प्लान नहीं है. देखो वापस से मैं रिपीट करूंगा कि लिबरल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ आज पोस्ट पैंडेमिक में रिकवरी प्लान, दिस वाज द टाइम व्हेन द गवर्नमेंट हैड टू वर्क विद अ स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्लान, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी प्लान, स्ट्रॉन्ग जॉब क्रिएशन प्लान. उसकी इंस्टेड ऑफ दैट इस गवर्नमेंट ने तो कैनेडियंस को इलेक्शन में झोंक दिया. नॉट फोकस्ड. क्यों किया? बिकॉज दे डोंट हैव एनी प्लान.
कोई प्लान है ही नहीं गवर्नमेंट के पास. सो द बेस्ट वाज कि ट्रूडो साहब अपनी जॉब सिक्योर करने के लिए लोगों की जॉब की कोई परवाह नहीं की. और उसके लिए जो मैंने ऑलरेडी जो प्लान बताया कि कंजर्वेटिव्स का जो प्लान है, एक अगर स्मॉल बिजनेसेस को कोई फाइनेंशियल वो चाहिए तो ग्रांट अप टू $200,000. और जॉब में हेल्प करने के लिए गिविंग द सैलरी अप टू 25%. अगर 6 महीने से ज़्यादा का जॉब लॉस है, गिविंग ए सैलरी अप टू 50% फॉर द स्टिपुलेटेड टाइम. और आपके बिजनेस का रेवेन्यू लॉस है तो वो जो ग्रांट है उसमें से भी 25% तक का टू गेट द बेनिफिट ऑफ दैट. तो ये जो एक ये प्लान है. दूसरा, जब आप इन्फ्लेशन पे बात करते हैं, आप अफोर्डेबल आप प्राइसेस पे बात करते हैं कि प्राइसेस कैसे आप उसको कंट्रोल करोगे, या हाउस मार्केट के जो प्राइस जो है स्काई रॉकेट हुए उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे. जैसे हाउसिंग में जो प्लान रखा गया है कि टू बैन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. द पीपल हु आर नॉट लिविंग इन कनाडा, they should not be buying the house out here. के उनके to ban that foreign investment, to make sure to build 1 million homes in the next 3 years. जो federal buildings है which is close to 37,000, उसमें से up to 15% को housing में, तो उससे जो एक demand supply का ratio that helps that. So जो youngsters हैं, जो new immigrant families हैं, जो अभी भी जो families है who are not able to afford the house to buy, they are able to buy the houses, so that again better quality of it helps on the quality of life. Or going back on the point of that once you start working, once you make economy as the key focus, once you make job creation as the key factors, you are able to get Canadians back to work. आज जो कंट्री को एक सिक्योर करना चाहिए था पहले से, जब इंफॉर्मेशन मिली उस पर रिएक्ट नहीं किया गया कि वी कैन गो थ्रू द पेंडेमिक, उस पर गवर्नमेंट ने डिडंट रिएक्ट इन द टाइम. जो मेडिकल सप्लाईज जो सिक्योर करने थे उसको टाइम पे इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज को दे रहे हैं अपने मेडिकल सप्लाईज. वैक्सीन का जो सिक्योर करना था, वी डिडंट सिक्योर दैट इन टाइम. उससे क्या हुआ कि जो अभी मार्केट खुल जाना चाहिए था, जो पीपल शुड हैव बैक ऑन देयर वर्क, पीपल शुड हैव द इकोनॉमी शुड बी ऑन द राइट ट्रैक, वो नहीं हुआ. पीपल आर स्टिल सिटिंग होम, still Canada has a lot of challenges going on. So the government entirely failed in the last couple of years, especially काम तो 6 साल में नहीं किया. लिबरल गवर्नमेंट ना इस साल काम, ये 2 साल में काम किया, ना उससे पहले 4 साल में काम किया. And that you can hear very clearly on the door, where people are very upset. इलेक्शन आया उससे अपसेट है. पीपल आर अपसेट बिकॉज दे आर सिटिंग एट होम. काफी लोग घर पे बैठे हैं, तो इट क्रिएट्स अनदर इश्यूज इंक्लूडिंग द मेंटल हेल्थ. तो पीपल थिंक इट्स टाइम फॉर ट्रूडो टू गो. And I think that's the right thing to say, that it's time for Trudeau to go and have a strong government of conservative with a strong plan. और साथ में ये है कि Canadians have a clear choice इस बार, कि want the same sort of government which was there, backed by Liberal, backed by NDP. NDP is, NDP ने उनको हर जो काम हो रहा है उसमें didn't hold Liberals accountable, and of all the wrongdoing, supported their wrongdoing. So it's time for both Liberals to go and not to have any NDP. नहीं तो ये coalition वापस से खिचड़ी बना के वापस से reckless spending, लोगों के लिए कोई जॉब का नहीं, इकोनॉमी का नहीं, वही हाउस मार्केट की वही चीज है. और बहुत सारे इश्यूज हैं. जब आप ब्रैम्पटन, व्हेन आई एम नॉकिंग द डोर, लोगों को क्राइम का बहुत इश्यू है. The crime is at
rise. अभी The streets are not safe. बिल्कुल Families are not safe. लेटेस्ट स्टेटस जो भी आया है मोस्ट जैसे जो सिटीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्राइम है, ब्रैम्पटन इज़ नंबर 8 सरप्राइजिंगली। हमें तो एक्सपेक्टेड था कि शायद और ऊपर हो जाएगा क्योंकि रिसेंटली कार जैकिंग्स बहुत हुई हैं और घर पे आके लोगों ने भी बहुत अटैक किया है। बाकी क्राइम इज़ टू मच, पीपल डोंट फॉलो रूल्स। और उसी में बहुत जरूरी है देश की इकोनॉमी स्ट्रांग होना। जब देश की इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो यू आर नॉट एबल टू पुट द मनी बैक इनटू इट। इसलिए पुलिस ऑफिसर्स, एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स हायर करने हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे बात करें कि ब्रैम्पटन का अलग और एक इशू है। ब्रैम्पटन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एक तो डिवर्स, जैसे आपने बताया, इट्स वेरी डिवर्स सिटी, प्लस इट्स आल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन कनाडा। पर उसके सामने जो स्पेंडिंग, जो फंडिंग मिलना चाहिए ब्रैम्पटन को, अवर इट्स अनफॉर्चुनेट टू से दैट कि हेल्थ केयर की बात कर लो, कोई भी चीज की बात कर लो, कि जो फंडिंग मिलनी चाहिए अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये तो पूरी अभी देखा जाए तो ब्रैम्पटन में इट्स ए टीम लिबरल, 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लिबरल से, पर जो फंडिंग मिलनी चाहिए नहीं मिली। सिटी ने काफी फंडिंग रिक्वेस्ट कर रखी है, वेदर वी स्पीक अबाउट द ट्रांजिट के LRT की बात करें, रैपिड ट्रांजिट की बात करें, नथिंग अगेंस्ट एनी सिटी, पर और छोटी छोटी सिटीज जो हैं उनको 1 बिलियन फंडिंग मिल गई है ट्रांजिट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वेयर ब्रैम्पटन हैज नॉट बीन। थोड़ा बहुत कोई फंड मिला है तो इट्स नॉट इनफ। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रोल या पब्लिक इलेक्टेड जो ऑफिशियल होता है उनका रोल ये होता है कि दे हैव टू रेज दिस लोकल इश्यूज, गवर्नमेंट में लेके जाएं एंड वर्क्स विद ऑल द 3 tier ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल रिप्रेजेंटेटिव आप नेचुरली फेडरल पॉलिसी पे ज्यादा काम करोगे, फंडिंग पे काम करोगे, लोगों की इश्यूज पे काम करोगे, बट एट द सेम टाइम यू बिकम एन एडवोकेट, यू एडवोकेट फॉर विद प्रोविंस एंड सिटी ऑल्सो। कैसे सबके साथ में मिलके काम किया जाए। यू नो व्हाट, मैं जब चैम्बर का प्रेसिडेंट था, आई वर्क विद ऑल द 3 tiers ऑफ गवर्नमेंट। हमने इंटरनेशनली जो बिजनेस डेलीगेशंस मैंने जो लीड किए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन वाज द पार्टनर इन दैट वन, पार्टनर सिटी। प्रोविंस के रिप्रेजेंटेटिव थे, फेडरल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, एंड वी वर एबल टू सिक्योर इन्वेस्टमेंट। तो उससे क्या होता है, वापस से यू आर क्रिएटिंग जॉब्स। और इट्स अनफॉर्चुनेट से लोगों ने अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को देखा भी नहीं है एरिया में। अपने बात करें, ये तो बहुत तकलीफ की टाइम थी, पर पीपल हैव नॉट सीन देम। पीपल आर सेइंग दैट वेयर आर आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनसे हम आज डोर पे जाते हैं तो जो इश्यूज इतने सारे रेज हो रहे हैं, वो इश्यूज को तो रिप्रेजेंट कर देना चाहिए था। थोड़े से इश्यूज पे हाईलाइट करना चाहिए। पर इश्यूज जैसे मैं बताऊं, सबसे बड़ा इश्यू तो इकोनॉमी पे है, जॉब्स पे है, लाइफ जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है उस पे है, लाइफ अफोर्डेबल नहीं रही है उस पे है, हाउसिंग मार्केट पे काफी इश्यूज है ब्रैम्पटन में, इंश्योरेंस के इश्यूज हैं, सेफ्टी के इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यू जो ट्रैवल टाइम है, क्वालिटी ऑफ इश्यूज है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रांजिट है, उसके इश्यूज हैं। फैमिलीज आर रियली ये दिस आर द यंग फैमिलीज, दिस आर द इमिग्रेंट फैमिलीज, दिस आर हार्ड वर्किंग फैमिलीज, और उनको उनकी लाइफ के साथ में ये जो when the government does not put effective policies और वो कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, that's not what Canadians deserve, that's not what Bramptonians deserve. आपके हिसाब से people want to see a change? People absolutely want to see a change. People are very clear. मैं बता रहा हूँ कि गेट पे आपको ये common thing you will hear, time for Trudeau to go. So Trudeau साहब के लिए it's not a कोई लोग समझते हैं अभी भी कि why the election? This is the time जहां अपने को लोगों की सेवा, लोगों के लिए काम करना चाहिए था। बट गवर्नमेंट पास, जैसे मैंने पहले भी बोला, गवर्नमेंट पास प्लान नहीं है जी। और ऐसे ही और भी कई इश्यूज हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया या चाइल्ड केयर हो गया, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे, पर वक्त आ गया एक छोटी सी ब्रेक का। सो यू वॉचिंग वोटर्स टॉक, प्लीज डोंट गो अवे, वी विल बी बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू प्रवासी टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट शर्नेहा गुलाटी और आप देख रहे हैं वोटर्स टॉक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्रैम्पटन ईस्ट से कंजर्वेटिव कैंडिडेट नवल बजाज, एंड हम लोग ने बहुत बात की है कनाडा के रिकवरी प्लान के बारे में, कंजर्वेटिव्स के प्लान के बारे में।
तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कंजर्वेटिव्स की और क्या पॉलिसीज़ या स्ट्रैटेजीज रहेंगी जिससे लोगों को ये थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाए कि वाई वोट कंजर्वेटिव्स। से देखो, एक तो आप ये देखो कि वी कैनेडियंस एंड व्हेन आई स्पीक अबाउट ब्रैम्पटनीज, ब्रैम्पटोनियंस हैव अ वेरी क्लियर चॉइस कि डू वी वांट ए गवर्नमेंट, लिबरल गवर्नमेंट बैक्ड बाय एनडीपी, which is, you know, which means the same जो अभी चल रहा है, which is more economic decline and unemployment, more reckless spending, more waste, more corruption. You know, एक चीज है कि this liberal government has been full of corruption and NDP didn't hold them accountable. इतने ministers resign हुए. You know, that's the reason conservatives are bringing an anti-corruption law. Okay, there should be a law which is abides to, you know, for the elected officials as well as the insiders, कि जो ऐसा नहीं है कि जो करना चाहे वो कर सके. It's very important to have that anti-corruption law. Liberals क्यों anti-corruption law लाने की बात भी नहीं करती है. You know, that's the thing. एक चीज देखी जाए कि liberals have not done anything the last 6 years. इसलिए जब इलेक्शन में जा रहे हैं तो कोई मुद्दा नहीं है बताने के लिए कि we have done this. Usually when governments, the current government goes, they will have the things to say that हमने ये किया strong. This time they don't have that points to talk about because उन्होंने कुछ किया ही नहीं है. And जो 2015 में प्रॉमिस किए वही 2019 में वापस से 2019 में जो प्रॉमिस किए वही 2021 में, बट नथिंग द ट्रैक रिकॉर्ड कि हमने ये प्रॉमिसेस सक्सेस. सो इट्स अ टाइम फॉर यू नो वेयर कैनेडियंस आर गोइंग टू स्पीक अप दैट इट्स टाइम फॉर चेंज. इट्स टाइम फॉर टू हैव a strong majority conservative government so that we can bring our economy back on track. We can have people, you know, back on the jobs. Accountability secure करें देश को आगे के लिए जो अभी हो गया, but how we secure our country for the future. और साथ में we make sure that Canadians की life अच्छी हो. Whether we are talking about the mental health or whether we are talking about healthcare की बात करें कि how we give more funding to the, you know, more funding comes to the city. उसी तरह से infrastructure की बात करें, how more infrastructure funding comes to the cities for the infrastructure, especially for the Brampton, where Brampton need a lot of funding for the infrastructure. We already announced some strong infrastructure plan. We have very announced कि हम city के साथ में काम करेंगे infrastructure के लिए. So you know, अपने बच्चों के future के लिए. This election is about securing Canada का future, our future, our kids future, our coming generation future. आपने लीडिंग न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था where based on the study कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं वैसे करें तो we will not be able to balance our books for next 50 साल. So our kids future we are putting at the stake. We want to make sure कि अपना future, kids future again repeat और आने वाली generations का future बहुत secured रहे. So please मेरे सब ब्रैम्पटोनियन से, सब कैनेडियन से एक अपील है कि प्लीज़ वोट फॉर कैनेडाज सिक्योरिंग कैनेडाज फ्यूचर. Vote for Conservative. In Brampton East, vote for me, that's Naval Bajaj, as your Conservative next Member of Parliament. You know, thanks. And my commitment to everyone is you will get a 24/7, 365-day Member of Parliament who will be working hard, not a Member of Parliament who is not seen also in that. So again, appeal is vote for Conservatives, vote for Naval Bajaj in Brampton East. And that was Mr. Naval Bajaj from Brampton East, the Conservative candidate. और इसके साथ ही हम वादा करते हैं कि एक बार फिर हम आपके सामने में हाजिर होंगे वोटर्स टॉक के नए गेस्ट और नए प्रोग्राम के साथ. उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस, वी रियली अप्रिशिएट इट. और उसके बाद आपका फीडबैक भी. हमने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें वीडियो मैसेजेस के राही भी अपने क्वेश्चंस या अपने कमेंट्स या कुछ भी अगर आपको कोई कंसर्न्स हैं वो भेज सकते हैं. और कुछ लोगों ने भेजा भी है जिन्हें हम आपको आगे एपिसोड्स में दिखाएंगे. इसके साथ ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर program. We'll be back.